Jesus, you are my healer. Oh Jesus, touch me and I. It's a joy once again to connect with you all. आनंद की बात है आप सबसे जुड़ने में। Yes, and I want to share a short word and then I want to pray for all of you. तो मैं छोटा सा वचन आपके साथ बांटना चाहता हूँ, फिर सबके लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ। Because I believe God is going to do something very powerful. मैं विश्वास करता हूँ प्रभु सामर्थ्यशाली चीजें करने वाला है। Yesterday I spoke to some people from our church. कल मैंने कुछ लोगों से बात की हमारी कलीसिया में से। And one of the sisters told me she was not even able to lift her hand to comb her hair or push the hand behind. तो एक सिस्टर ने कहा कि वो अपना हाथ उठा भी नहीं पा रही थी अपने बाल बनाने के लिए। Yes, but the Lord healed her yesterday in the morning. लेकिन कल सुबह की सभा में प्रभु ने उनको बिल्कुल ठीक किया। Yes, and I also was communicating to somebody from outstation. और मुंबई के बाहर से भी मैं किसी से बात कर रहा था। So that person told me, Pastor, I have skin infection and all that has gone and I've been healed completely. तो उन्होंने कहा पास्टर मुझे चमड़ी में इन्फेक्शन था लेकिन वो पूरी तरह से ठीक हो गया और चला गया। And the person also told me I had bone problems for maybe 4 or 5 years. और वो व्यक्ति ने भी कहा कि हड्डियों में मुझे समस्या थी 4-5 साल से। But the Lord healed me. लेकिन प्रभु ने मुझे चंगाई दी है। Nearly in Mumbai, nearly 85,000 people were affected by COVID. 85,000 लोगों को कोरोना का प्रॉब्लम हुआ है मुंबई में। I want you all to listen to me very carefully. मैं चाहता हूँ ध्यान से सुनो। As a church, we have a responsibility to the city also. एक कलीसिया होने के नाते हमारी कुछ जिम्मेदारी है हमारे शहर के प्रति। So it is not just about your protection, but also we are the salt, we are the light for the city. तो सिर्फ ये आपकी सुरक्षा के बारे में नहीं है, लेकिन ये शहर के लिए हम वो नमक के और ज्योति है। ये शहर ने हमको खाना दिया है, हमको रहने के लिए जगह दिया है, हमें शांति दिया है ये शहर ने। You should know it. आपने ये जानना है। And I want to tell you that we have a responsibility to pray for the city. और मैं कहना चाहता हूँ हमारे पास एक जिम्मेदारी है कि हम ये शहर के लिए प्रार्थना करें। And God is expecting, trusting us that we will rise up to the situation and we will pray. और प्रभु हम पे भरोसा कर रहे हैं कि हम उठेंगे और प्रार्थना करेंगे। So this is your hour, this is your moment, and it should not go out of your hand. तो ये आपका समय है, आपका क्षण है और ये आपके हाथ से गवाना नहीं है। 85,000 people were affected by COVID. 85,000 लोगों को ये कोविड हुआ है। 55,000 people were healed of COVID. 55,000 लोग बिल्कुल ठीक हो गए। 55,000 उसमें से बाहर आए हैं। And the sad thing is 5,500 people have died. और दुख की बात है 5,500 लोग मर चुके हैं। Yeah, now I want to say thank you to the Lord. मैं प्रभु को धन्यवाद कहना चाहता हूँ। Because God has protected us. प्रभु ने हमें सुरक्षित रखा है। So if you believe what I am saying, lift your hand and say thank you to the Lord. अगर आप विश्वास करते हो जो मैंने कहा है तो अपने हाथ उठाकर प्रभु को धन्यवाद कहो। So God has protected you. प्रभु ने आपको सुरक्षित रखा है। You are not counted among those 5,500 people who died. वो 5,500 लोग जो मर चुके हैं उसमें आपकी गिनती नहीं हुई है। But लेकिन people are saying it may increase. लोग कह रहे हैं कि ये बढ़ेगी, ये संख्या बढ़ेगी। But we have the power. लेकिन हमारे पास सामर्थ्य है। There is power in prayer. प्रार्थना में सामर्थ्य And है। I want to encourage all of you. और मैं आप सबको उत्साहित करना चाहता Not हूँ। out of fear, डर के मारे नहीं, but love, प्रेम, burden, एक बोझ से that God will hear our prayer. कि परमेश्वर हमारी प्रार्थना जरूर सुनेंगे। God will protect the city. परमेश्वर ये शहर को सुरक्षित रखेंगे। God will help the city. प्रभु ये शहर की मदद करेंगे। Today I want to talk to you about healing and health to your bones and your body. आज मैं बात करना चाहता हूँ चंगाई और अच्छा स्वास्थ्य जो आपके शरीर और आपके हड्डियों के लिए। Yes. Now let me say something. मैं कुछ कहना चाहता हूँ। Healing is one thing, चंगाई एक बात होती है, but health is what we want. लेकिन जो स्वास्थ्य है वो हमें चाहिए। If we are sick, अगर हम बीमार हैं, by the stripes of Jesus, यीशु के कोड़े खाने के you द्वारा will be healed. आप चंगे हो जाओगे। And once you are healed, एक बार आप चंगे हो जाते हो, stay healthy in the name of Jesus. फिर आपने अच्छे स्वास्थ्य में रहना है यीशु के नाम में। Others may struggle, but you should have good health. दूसरे लोग संघर्ष कर सकते हैं, लेकिन आपके पास अच्छा स्वास्थ्य होना चाहिए। And suppose you are struggling now, don't be under condemnation because your God is a good Father and He will help you. और अगर आप इस वक्त संघर्ष कर रहे हो तो कोई दोष भावना में मत जाना, परमेश्वर अच्छे पिता है, वो आपकी मदद जरूर करेंगे। So let me give you one promise that God is going to heal you. तो मैं आपको एक प्रतिज्ञा देना चाहता हूँ जिसमें लिखा है कि प्रभु आपको चंगाई देंगे। As you are hearing me, healing will begin.
जैसे आप मुझे सुन रहे हो चंगाई शुरू हो जाएगी। By the end of this program, by the end of this service, I want to tell you, somebody over here who is not able to hear, that person will be able to hear in the name of Jesus. जैसे ये सभा समाप्त होगी तो एक व्यक्ति है जो सुन नहीं पा रहा है वो सुन भी पाएगा। I rebuke that spirit of deafness right now in the name of वो Jesus. बहरेपन की आत्मा को मैं डांटता हूँ इस वक्त यीशु के नाम में। And I command that deaf spirit to leave that ear now in Jesus' name. और वो बहरे आत्मा को मैं कहता हूँ यीशु के नाम में वो कान को छोड़कर बाहर जाओ। I pray your ears will hear clearly in Jesus' name. मैं प्रार्थना करता हूँ आपके कान स्पष्टता से सुन पाएंगे यीशु के नाम में। Even half deaf people, I speak to you that in the name of Jesus you will hear clearly. जो आधा ही सुन पा रहे हैं मैं प्रार्थना करता हूँ आप बिल्कुल ठीक सुन पाओगे। Amen. Let me give you a promise first. तो आइए मैं आपको एक प्रतिज्ञा दूं। 1 Peter 2:24. पहला पत्रस 2:24। By the wounds of Jesus you will be healed. यीशु के घाव से आप चंगे हो जाओगे। Yes, if you believe that in your home, shout an amen. अगर आप विश्वास करते हो तो आपके घर में चिल्लाकर आमीन कहो। Wound means the blood of Jesus. घाव का मतलब है लहू, यीशु का लहू। And the blood of Jesus means the life of Jesus. और यीशु का लहू का मतलब है यीशु का जीवन। Yeah, when sickness comes, death is slowly coming. जब बीमारी आती है ना तो इसका मतलब है कि मृत्यु आहिस्ता आहिस्ता आ गई है। But when the blood of Jesus comes, लेकिन जब यीशु का लहू आता है life is coming. जीवन आ रहा है। All of you, आप सब in the name of Jesus, यीशु के नाम में receive the life of God, यीशु के जीवन को पाओ which comes through that wound which Jesus received. जो यीशु के घाव के द्वारा आते हैं। Stripes were laid on Jesus, जो कोड़े यीशु के ऊपर डाले गए थे and you will benefit from the work of Jesus today. और जो यीशु ने कार्य किया उसका फायदा आपको होगा। So you will receive healing today. तो आपको चंगाई जरूर मिलेगी। All kinds of healings are going to happen, हर प्रकार की चंगाइयाँ and होगी especially bones and skin today. और खास करके हड्डियाँ और चमड़ी, Then your ears also. फिर कान भी। Yeah, some people in your eyes you will also receive. कोई लोग अपनी आंखों में भी आपको चंगाई मिलने वाली Yeah, है। tumors will just melt and fall. गांठ पिघल कर गिर जाएगी। Yeah, let me go ahead now. आगे जाएंगे। 3 John and verse 2. तीसरा यूहन्ना और वचन 2। Once you are healed, एक बार जब आप चंगे हो जाते हो God wants you to be healthy. प्रभु चाहते हैं कि आप अच्छे स्वास्थ्य में रहो। Healthy. अच्छा स्वास्थ्य। Everybody is afraid of COVID, सब लोग कोविड से डर रहे हैं। but my prayer is, मेरी प्रार्थना है in this season you should stay healthy. ये मौसम में आपने अच्छे स्वास्थ्य का अनुभव करना है In the name of Jesus. यीशु के नाम में। Wherever you are, lift your hand and say thank you, Lord. जहाँ कहीं भी आपको अपने हाथ उठाओ और धन्यवाद कहो प्रभु से। Amen, amen. And especially in this season of COVID, you should not fall sick. और खास करके ये कोविड के मौसम में आपने बीमार बिल्कुल नहीं होना है। Yeah, and if you fall sick, don't worry, God will heal you. और Okay? अगर बीमार होते हो तो चिंता मत करो, प्रभु आपको बिल्कुल ठीक Don't करेंगे। worry. अरे अभी क्या हो गया? अभी क्या? कुछ नहीं हो गया. ठीक है, God will heal you. प्रभु Okay? आपको ठीक करें, Don't worry. चिंता मत करो। Okay, so healing is one thing तो चंगाई एक बात है and health is one. और स्वास्थ्य दूसरी बात है। 3 John verse 2 says, तीसरा यूहन्ना वचन 2 कहता है, John is praying यूहन्ना प्रार्थना कर रहा and he है prays like this. और ऐसे प्रार्थना कर रहा है, As their soul prospers, प्रभु जैसे वो अपने प्राण में उन्नति करे, let them prosper in all things उन्हें तो वो सभी बातों में उन्नति करे and और let them be in health. उन्हें तो वो अच्छे स्वास्थ्य में रहे। God wants you to be in good health. प्रभु चाहते हैं कि आप अच्छे स्वास्थ्य में रहो। Yes, God wants your bones to be strong. प्रभु चाहते हैं कि आपकी हड्डियां मजबूत रहे। Now maybe some of you who are hearing, you may be 50 plus, 60 plus, 70 plus, 80 plus. आप में से कुछ लोग जो मुझे सुन रहे हो शायद आप 50, 60, 70 साल के ज्यादा हो। Yeah, some of you are 30 plus and your bones are very weak. You are pain, they are paining. आप में से कुछ लोग शायद 30 साल के हो लेकिन आपकी हड्डियां दुखती रहती है। Get ready. तैयार हो जाओ, The Lord is about to do miracles for you. प्रभु आपके लिए चमत्कार करने पर है। Yes, all the elderly people, सारे बुजुर्ग लोग listen to me. सुनो मुझे। Yes, Psalm 92 verse 14. भजन संहिता 92 और वचन 14। When you are old, जब आप बुजुर्ग हो जाओगे they will still give fruit. तभी भी आप फल दोगे। All the people in this house of God, सारे लोग जो ये घर से जुड़े हैं, even if you are 80, अगर आप 80 साल के भी हो, there will be fruit in your life. आपके जीवन में फल होगा। And then it says, फिर लिखा है they will always be strong. वो हमेशा मजबूत रहेंगे। Even when you are 75, आप 75 के हो तब you will be strong. आप मजबूत रहोगे। You should say to yourself, आपने अपने आप से कहना है, the Lord says, प्रभु कहता है I will be strong. मैं तो मजबूत रहूंगा। Yes, that is what God is saying. यही तो प्रभु कह रहे हैं। You will be fresh. आप ताजा रहोगे, You will be green आप हरे हरे रहोगे in the name of Jesus. यीशु के नाम में। Yeah, mothers, fathers,
जो माए हैं, जो पिताएं हैं, Bless your children, अपने बच्चों को आशीषित but your करो। children are not going to give you khanda like that. Don't worry. आपके बच्चे आपको कंधा नहीं देंगे। God is going to keep you strong. प्रभु आपको मजबूत रखेंगे। Your bones will be strong. आपकी हड्डियां मजबूत Your रहेगी। flesh will be strong. आपका देह ठीक रहेगा। And you will be fruitful even in your old age. और बुजुर्ग होने पर भी आप फलवंत रहोगे। Amen. Okay, now how to stay healthy in your body and bones? कैसे अच्छा स्वास्थ्य में रहना है हमारे शरीर में और हमारी हड्डियों में। Number one, पहली बात, learn to fear God. परमेश्वर का भय मानो। What does it mean? इसका मतलब क्या है? Let me show you. मैं आपको दिखाता हूँ। Proverbs chapter 3 verse 7 and verse 8. नीति वचन 3 वचन 7 और 8। Many people come to me for prayer. बहुत लोग मेरे पास प्रार्थना के लिए I आते pray हैं। for them. मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ। After 1 month again they come. 1 महीने के बाद वापस आते हैं। Again I pray. फिर प्रार्थना करता They are हूँ, okay. ठीक हो जाते After हैं। 1 month again they come. वापस आते हैं 1 महीने के So बाद। in 1 year they will meet me 12 times. तो 1 साल में मुझे 12 बार तो मिल लेते हैं। So then I thought why they come again and again and तो again. मैं सोचता हूँ ये बार बार क्यों आते रहते हैं। So I will try to give an answer. Try, okay? तो मैं कोशिश करूंगा कुछ जवाब देने की। Fear the Lord परमेश्वर का भय मानो and depart from evil. और दुष्टता से दूर हो जाओ। If you have the fear of God, अगर आपके अंदर परमेश्वर का भय होगा you will leave sin and walk away from sin. तो आप पाप को छोड़कर दूर चले जाओगे। Then what will happen तो is, फिर क्या होगा? verse 8 says, वचन 8 कहता है, when you leave sin, जब आप पाप छोड़ोगे it will be health to your body तो वो आपके शरीर के लिए स्वास्थ्य हो जाएगा and it will be strength to your bones. और आपकी हड्डियों के लिए मजबूती हो जाएगी। Some of us, we are eating so much tablet. हम में से कुछ लोग इतनी दवाइयाँ खाते हैं। It is time we leave some things which are not good for us. अभी समय आ चुका है कुछ चीजों को छोड़ देना है जो Yes. हमारे लिए अच्छी नहीं है। Why Jesus came? क्यों यीशु आए? For our sin. हमारे पाप के लिए, Not just to forgive us. सिर्फ हमें क्षमा करने नहीं। Jesus said यीशु ने कहा to the woman who was caught in adultery, जो स्त्री व्यभिचार में पकड़ी गई थी, John 8 and verse 11, यूहन्ना 8 और 11, he said, यीशु ने कहा I don't condemn you. मैं तुम्हें दोषी नहीं I ठहराता हूँ, forgive you. मैं तुम्हें क्षमा करता हूँ, But लेकिन don't go back to sin. वो पाप में वापस लौट के मत जाना। Psalm 36 verse 1 says, वचन संहिता 36 और वचन 1, sin speaks to the wicked पाप जो है ना दुष्ट लोगों से बात करता है, deep in their heart. उनके हृदय की गहराई में बात करता है। Why? क्यों? Because they have no fear of God at all. क्योंकि उनके अंदर परमेश्वर का भय बिल्कुल नहीं है। Again, I want to say, फिर से कहना चाहता हूँ, Jesus came to save us from our sin, यीशु हमें हमारे पाप से बचाने के लिए आया not है। just forgiveness, सिर्फ क्षमा ही नहीं, but bring us out of sin. हमें उसमें से बाहर लाने के लिए। You know, the sad thing today is, पता है दुख की बात ये है, because many people, you know, when we were gathering together, जब हम साथ में मिलते थे पहले, people were coming. लोग आते थे, Yes, and they were joining, वो जुड़ते थे, doing different things in the church. कलीसिया में अलग अलग चीजें करते But थे। now when I am finding out, अब मैं जैसे पूछ रहा हूँ, I am seeing people are distracted, people are getting stuck here and there. मैं देख रहा हूँ लोग यहाँ वहाँ अटक गए हैं And I am very sad in my heart. और मेरे दिल में मैं बहुत दुखित हो गया Because in this atmosphere, enemy is hitting people. क्योंकि ये माहौल में दुश्मन लोगों को मार रहा है। And I want to tell you, और मैं कहना चाहता हूँ, Jesus wants you to come back. यीशु चाहते हैं कि आप लौट के आओ, Come out of it. उसमें से बाहर आओ। Yes. Why people allow sin to whisper in their heart? क्यों लोग अनुमति देते हैं पाप को उनसे बात करने के लिए? Because there is no fear of God. क्योंकि उनके अंदर परमेश्वर का भय ही नहीं है। Yes. And let the fear of God come tonight in your heart and my heart. उन्हें तो आज प्रभु का भय आपके और मेरे हृदय में आए। Psalm 32 verse 3 says, वचन संहिता 32 और 3, when I refuse to confess my sin, जब मैं पाप का अंगीकार करने से इनकार करता हूँ, my body began to be affected. तो मेरे शरीर के ऊपर उसका प्रभाव हुआ And I groaned all day long. और पूरा दिन मैं करा रहा था। Yes, I want to encourage all of you मैं आप today. सबको उत्साहित करना चाहता हूँ, Sin is not for you. पाप आपके लिए नहीं It है, is for the world. वो संसार के लिए है। The death of Jesus on the cross of Calvary is to bring us out of sin. यीशु का जो मृत्यु थी क्रूस के ऊपर, वो इसलिए थी कि हम पाप में से बाहर So आए। you may say, what to do, Pastor? आप कहेंगे पास्टर क्या करूं? Proverbs 28 verse 13 says, नीति वचन 28 और वचन 13, yeah,
whoever covers his sin जो भी अपने पाप को ढकता है will not prosper. वो उन्नति नहीं करेगा, But लेकिन whoever confesses his sin जो भी पाप का अंगीकार करता है and leaves the sin, और पाप को छोड़ देता है, that person will receive mercy. वो व्यक्ति को दया जरूर मिलेगी। And I pray today, और मैं प्रार्थना करता हूँ you आज will decide, आप निर्णय लेंगे, I don't want to live like this. मुझे ऐसे नहीं जीना है, I want to go to the Lord. मुझे यीशु के पास जाना I है want to walk the way He says. और उस तरह चलना है जैसे प्रभु कहते हैं। So number one, पहली बात, what should you do आपने क्या करना है to have a healthy body and healthy bones? ताकि हमारा शरीर स्वस्थ में रहे और हमारी हड्डियां भी स्वस्थ रहे। Fear of God, परमेश्वर का भय which will help you to walk away from sin. जो हमारी मदद करेगा कि हम पाप से दूर चले जाएं। Number two, दूसरी बात, how to have healthy body and healthy bones. कैसे अच्छा स्वस्थ और स्वस्थ हड्डियां हो। Yes, you know, right now because of COVID, you know what are they telling you to do? इस वक्त कोविड के कारण पता है लोग क्या कह रहे हैं करने के लिए? गर्म पानी पियो, और क्या बोलते हैं उसको, वाफ लो। वाफ लो, और क्या है, विटामिन लो, और क्या है पता नहीं, they are saying a lot of things. बहुत सारी चीजें लोग कह रहे हैं करने के No लिए। problem, please do it, okay, please do कृपया it, करके करो। please do it, please do it. But let me tell you something. मैं कुछ कहना चाहता हूँ, Simply, when the virus tries to come inside, your body should have enough immunity to resist it. जब वायरस आपके शरीर में अंदर प्रवेश करने की कोशिश करता है Yeah. तो आपके शरीर के अंदर पहले से ही वो मजबूती होनी चाहिए। Yeah, and when will you have strong immunity? कब आपकी इम्यूनिटी ऐसे मजबूत होगी? When your bones are strong. जब आपकी हड्डियां मजबूत होगी, Because inside your bone, blood cells are being produced. क्योंकि आपकी हड्डियों के अंदर खून का निर्माण होता है। All of you, please listen to me. आप में से सब लोग प्लीज सुनिए। जितना तुमको, please do all that the government is saying. But I want to tell you, your help comes from the Lord. गवर्नमेंट जो भी कह रहे हैं कृपया करके करो, Yeah. लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूँ आपकी मदद जो है परमेश्वर से आती है। Amen. Thank you. Number two. दूसरी बात, Yes, the word is very important. प्रभु का वचन बहुत महत्व का है। Yeah. The words from the mouth. प्रभु के मुंह से शब्द, Yes, the words from the mouth are very important. जो शब्द मुंह से आते हैं वो बहुत Yeah. महत्व के हैं। Proverbs chapter 15 verse 13. नीति वचन 15 और 30। A good report makes the bones very healthy. अच्छी खबर या अच्छा रिपोर्ट जो होता है Yeah. वो हमारी हड्डियों को मजबूत बनाती है। Yes, all of you want strong bones. आप No? सबको अच्छी मजबूत हड्डियां चाहिए ना, But for strong bones, you need good words. लेकिन अच्छी मजबूत हड्डियों के लिए अच्छे शब्द होना बहुत जरूरी है। What kind of words? किस प्रकार के शब्द? Proverbs chapter 16 verse 24 says, नीति वचन 16 और 24 कहते हैं, precious words are like honey. अनुग्रह से भरे शब्द जो होते हैं ना वो शहद के समान है। It is sweet to your soul and to your body, वो आपके शरीर और आपके प्राण के लिए मीठे होते and हैं it will heal your bones. और आपकी हड्डियों में चंगाई लाएंगे। You can eat vitamin, you can eat everything, whatever doctor is saying, but I want to tell you, our big doctor is saying something. Please take that vitamin also जो भी today. गोलियां डॉक्टर कहते हैं वो आप ले सकते हो, लेकिन Yes. हमारा सबसे बड़ा डॉक्टर कुछ हमें कह रहा है Yeah. वो हमने करना है। What does he say in Proverbs 16:24? नीति वचन 16-24 में क्या कह रहा है? Precious words. अनुग्रह से भरे शब्द। What do you need every day? रोज आपको किस चीज की जरूरत है? Precious words. अनुग्रह भरे शब्द। Now, the problem is, समस्या ये है every day we don't hear gracious words. रोज हम ये अनुग्रह भरे शब्द नहीं सुनते। In fact, we are only hearing negative words. रोज हम सिर्फ नकारात्मक शब्द सुनते हैं। इतने मर गए, इतना ये हो गया, उधर एक बिल्डिंग गिर गया, उधर ये हो गया, इसका काम बंद हो गया, इसका ये हो गया, उसका वो हो गया, उसका वो हो गया, and everything is negative around और us. सब कुछ नकारात्मक है हमारे, Everything is negative. सब कुछ नकारात्मक है। So, where will I get these gracious words? तो मुझे ये अनुग्रह भरे शब्द कहाँ मिलेंगे? Where should I go? कहाँ मुझे जाना चाहिए? Luke 4:22. लूका 4 और 22। People were amazed at the gracious words of Jesus. लोग जो थे ना अचंभित हो जाते थे यीशु के अनुग्रह भरे शब्द सुनकर। What do you want आपको क्या चाहिए? for your bones? अपने हड्डियों के लिए? What do you want किस चीज की जरूरत for your है? health? आपके स्वास्थ्य के लिए? Gracious words. अनुग्रह भरे शब्द। And what used to come out of the mouth of Jesus? यीशु के मुंह से क्या आता था? Gracious words. अनुग्रह भरे शब्द। And the Bible says, बाइबल में लिखा when है people used to hear Jesus, जब लोग यीशु को सुनते थे ना they used to literally take the word and hold on to it. वो शब्दों को लेते थे और पकड़ के रखते They थे, used to cling on to that word. ऐसे चिपक के रखते थे यीशु के शब्दों My को। prayer is, मेरी प्रार्थना है take
that word of the Lord. प्रभु के वचन को लो। You may say, how do I do it? आप कहेंगे कैसे करूं? How do I do it? कैसे करूं? Open your Bible every day. रोज अपना पवित्र शास्त्र खोलो, Every day. रोज खोलो, Read the Bible. रोज पढ़ो। And I know some of us are struggling to read the Bible. मैं जानता हूँ हम में से कुछ लोग संघर्ष कर रहे हैं बाइबल पढ़ने If के you are लिए। struggling, अगर संघर्ष कर रहे हो ask for help. तो मदद मांगो ना। Yeah, there's no shame in asking for help. उसमें कोई शर्म नहीं है अगर मदद मांगने में। So what should I do? तो मुझे क्या करना है? Read the Bible. बाइबल पढ़ना है। Because when you read the Bible, क्योंकि जब आप बाइबल पढ़ते हो they are filled with words of grace. वो उसमें अनुग्रह भरे शब्द है। And when you hear it, और जब आप सुनते हो, when you see it, जब देखते हो, it will be healing and health to your bones and to your body. तो वो आपकी हड्डियां और आपके शरीर के लिए चंगाई और स्वास्थ्य बन जाएंगे। Number 3, तीसरी बात, how do I receive health and healing to my body and my bones? कैसे मैं ये स्वास्थ्य और चंगाई अपने शरीर और हड्डियों के लिए पाऊं? Yeah, Isaiah 66 verse 12 to verse 14. यशाया 66 वचन 12 से 14। Yeah, God is telling the people of Israel, परमेश्वर इस्राएल के लोगों से कह रहे हैं, I will give you my peace. मैं तुम्हें मेरी शांति दूंगा। For healing of your bones and your health, you need peace. आपकी हड्डियां के लिए चंगाई के लिए आपको शांति की जरूरत है। Very, very important. बहुत महत्व का है। Then verse 13 is said, वचन 13 कहता है, God is telling them, प्रभु कह रहे हैं, I will comfort you. मैं तुम्हें सांत्वना दूंगा। Okay. Two things he said now. दो चीज कही, I will give you peace. मैं तुम्हें शांति दूंगा, I will give you comfort. मैं तुम्हें सांत्वना दूंगा। Yeah. Then verse 14 it says, वचन 14 में लिखा है, when this happens, जब ये होगा ना, when peace comes to you, जब शांति आएगी, when comfort comes to जब you, सांत्वना आएगी, what will happen? तो क्या होगा? Your bones will flourish like grass. तो आपकी हड्डियां फलवंत होगी घास के समान। When peace comes, जब शांति आती है when ना, comfort जब comes, सांत्वना आती है, your bones will be like green grass. तो आपकी हड्डियां हरी घास के समान हो जाएगी। If peace शांति is a person, वो एक व्यक्ति है, his name is Jesus. उसका नाम है यीशु। Isaiah 9 verse 6. यशाया 9 और वचन 6। Yes. Jesus is called the Prince of Peace. यीशु को शांति का राजकुमार कहा Yeah. गया है। तुम्हारा अगर हमेशा झगड़ा होते रहेगा ना, I want to tell you, it will affect your body. झगड़ा होता रहेगा तो आपके शरीर के ऊपर प्रभाव जरूर पड़ेगा। हमेशा झगड़ा, घर में झगड़ा, बाहर झगड़ा, you are a झगड़ालू man only. आप झगड़ालू व्यक्ति हो। Yeah, even in lockdown you don't leave anybody. लॉकडाउन में भी किसी को छोड़ते नहीं हो। But I want to tell you something. आपको कहना चाहता हूँ, How do you have health and healing in your body? कैसे अपने शरीर में स्वास्थ्य हो सकता है? Peace. शांति, Peace with God. परमेश्वर के साथ शांति, Peace with man. मनुष्य के साथ शांति, Yes. And also the peace of God in your heart. और परमेश्वर की शांति आपके हृदय में भी। You can have trouble all around you, आपके इर्द गिर्द समस्या हो सकती है, but लेकिन Jesus will give you peace in your heart. यीशु आपको शांति देंगे आपके हृदय के अंदर। सब जगह सब लोग चिल्ला रहे हैं, लेकिन अगर प्रभु तुझे उसकी शांति देगा उसके हृदय, तेरे हृदय में, you will experience the healing of God and the strength of God in your body and in your bones. तो आप प्रभु की चंगाई और स्वास्थ्य महसूस करोगे आपके शरीर में और आपकी हड्डियों में। And then the Bible says, फिर बाइबल में लिखा है, the comfort of God. प्रभु की सांत्वना। What is comfort? ये सांत्वना क्या है? I want to talk to all of you right मैं आप सबसे बात करना चाहता now. हूँ। Comfort means सांत्वना का मतलब है God helps you. प्रभु आपकी मदद करते हैं। Comfort means सांत्वना का मतलब है God gives you strength. प्रभु आपको मजबूती देते हैं। Comfort means सांत्वना का मतलब है God removes your loneliness. प्रभु आपके अकेलेपन को निकाल देते हैं। Comfort means सांत्वना का मतलब है God understands your problem प्रभु आपकी समस्या को समझते हैं and removes the pain of your problem. और आपकी समस्या के अंदर जो दर्द है ना उसे निकाल देते हैं। Again I say to you, फिर से कहता हूँ, God's comfort has to come to you. परमेश्वर की सांत्वना ने आपके पास आना है। Yes, today you see now what's happening. आज आप देखो ना क्या हो रहा है, What is happening? क्या हो रहा है। There's no comfort. कोई सांत्वना नहीं है, People are troubled. लोग विचलित हैं, So troubled. इतने You विचलित can हैं, see it on their face. उनके चेहरे पे दिखाई दे When रहा I है। go down to buy vegetables, जब मैं नीचे जाता हूँ सब्जियां खरीदने yeah, के लिए, everybody's face is down. सबका चेहरा गिरा हुआ है। I understand. मैं समझ सकता हूँ, But लेकिन what about you and me? आपका और मेरा क्या? Our God हमारा gives परमेश्वर us peace. हमें शांति देता है। Our God हमारा gives परमेश्वर us comfort. हमें सांत्वना देते हैं। Our God हमारे is the परमेश्वर source of all comfort. वो सारी सांत्वना का स्रोत है। 2 Corinthians chapter 1
दूसरा कोरिन्थियों 1 verse 3 says, वचन 3 कहता है, God is the source of all comfort. परमेश्वर सारी सांत्वना का स्रोत है। इस कोविड सीजन में भी सांत्वना का स्रोत परमेश्वर है, और वो तेरा परमेश्वर है, वो तेरा पिता है। क्यों ना उसके पास जाकर के है, हे प्रभु मुझे तेरी सांत्वना चाहिए इस मौसम में, इन द नेम ऑफ जीसस। आई वांट योर कंफर्ट इन दिस सीजन लॉर्ड। प्रभु ये मौसम में मुझे आपकी सांत्वना चाहिए। हालेलुया। एंड इफ यू गेट दैट पीस एंड दैट कंफर्ट, और अगर आपको वो शांति और सांत्वना मिलती है, your bones will flourish like green grass. तो आपकी हड्डियां फलवंत होगी हरी घास के समान। Number 4, चौथी बात, how to be healthy कैसे अच्छे स्वास्थ्य में रहना in है, your bones and in your body. अपने हड्डियों में और अपने शरीर में। Proverbs chapter 14 verse 30. नीति वचन 14 और वचन 30, When there is envy, जब ईर्ष्या होती है it will rot your bones. तो आपकी हड्डियों को वो नाश करती We sometimes we think मैं कितना मेडिसिन खा रहा हूँ लेकिन मैं ठीक नहीं होता। What is the problem? है। तो क्या है समस्या? Maybe शायद your problem is envy, हो सकता है आपकी समस्या ये ईर्ष्या है, and it is an issue of your heart. और ये आपके हृदय की समस्या है। And this season we have to come out of these things. और ये मौसम में हमने इसमें से बाहर आना है। Let's learn the heart of God. आइए प्रभु के हृदय को समझे And let's be victorious in the name of और Jesus. आइए जयवंत हो जाए यीशु के नाम में। Okay, what is envy? ये ईर्ष्या क्या है? Envy basically means ईर्ष्या का मतलब है you see what others have आप देखते हो कि दूसरों के पास क्या है and you like it और आपको अच्छा लगता है and you want it और आपको वो चाहिए and you think about it और आप उसके बारे में सोचते रहते हो and you also feel emotions about it और इसके बारे में आपको भावनाएं भी महसूस होती है and you plan also. और आप योजना भी बनाते हो। And there are some of us, और हमें से कुछ लोग हैं, after we get that also, वो मिलने के बाद भी we are still not happy. फिर भी हम खुश नहीं है, We are looking for some more. फिर हम और भी ज्यादा कुछ देखते रहते हैं। I want to tell you, your heart is killing your bones. मैं आपको कहना चाहता हूँ आपका जो हृदय है ना वो आपकी हड्डियों को मार रहा है। और हम लोग क्या है ना, we are trying to eat medicine, trying to think that this medicine will heal my bones. और हम ऐसा सोचते हैं दवाइयाँ खा खा के कि ये दवाइयाँ हमारी हड्डियों को ठीक कर देगी। And when doctors see us, they are so happy, they are so glad. They say, come, come, come. जब डॉक्टर हमें देखते हैं तो बहुत खुश हो जाते हैं, कहते हैं आओ आओ। Yeah, now I don't condemn any of you, okay? Please go to doctor, no problem, okay? मैं किसी भी दोष नहीं लगा रही हूँ, कृपा करके जाओ डॉक्टर के Yeah, पास। now you may say, okay, pastor, मुझे समझता है क्योंकि मुझे भी ना दूसरों का जब मैं कुछ देखता हूँ ना, मुझे अंदर ऐसा लगता है मुझे वो चाहिए, मुझे वो चाहिए, मुझे वो चाहिए, मुझे वो चाहिए, मुझे वो चाहिए करके। मुझे ऐसा पास्टर मुझे भी ऐसा लगता है, मैं दूसरों किसी को देखता हूँ तो मुझे भी उनका चाहिए। हाँ, okay. Now look at Hebrews chapter 13 verse 5. इब्रानियों 13:5 देखो। Let not there be covetousness in your life. आपके जीवन में वो लालच लालच नहीं होना है। Covetous means वो जो है ना वो मुझे चाहिए। वो दूसरे का जो है ना वो मुझे चाहिए, ये ऐसी हमारी मनोभावना नहीं होनी। Yeah, what is others, don't pick it up. दूसरे का जो भी है उसकी चाहत मत रखो। Then it says, बाद में लिखा है be content with what you have. जो आपके पास है ना उसमें आप संतुष्ट हो जाओ। Now you may say, Pastor, I don't have what they have. आप कहेंगे पास्टर लेकिन मेरे पास तो नहीं है वो जो उनके पास है। But they also don't have what you are having. लेकिन उनके पास भी वो नहीं है जो आपके पास है ना। Now you may say, but Pastor, I like what they have. फिर आप कहेंगे पास्टर मुझे बहुत पसंद है जो उनके पास है। But God says, some things I will not give you. लेकिन प्रभु कहते हैं कुछ चीजें मैं तुम्हें नहीं दूंगा, I will not give you. वो तुम्हारे लिए नहीं है। Why God? क्यों प्रभु? Because God has a different plan for everybody. क्योंकि प्रभु के पास अलग योजना है सबके लिए। For everybody, different plan. सबके लिए अलग योजना है। James 1 and verse 17 says, याकूब 1 और 17 कहता है whatever God has given you, जो भी प्रभु ने आपको दिया है it is good, वो अच्छा है, it is perfect. वो सिद्ध है। Let me give you a key right now. मैं आपको एक चाबी देता हूँ। God has given you many good things. प्रभु ने आपको बहुत भली बातें दी है। Why don't you open those things and begin to look at it and appreciate it? क्यों ना उन चीजों को खोलो, देखो और प्रभु को धन्यवाद दो उन चीजों के लिए। Yeah. बाजू वाले के पत्नी को मत देखो, पहले तेरे पत्नी को देख और तेरे पत्नी के अंदर जो अच्छे अच्छे गुण है उसे देख और उसके लिए प्रभु को धन्यवाद दे। Amen. तेरे बच्चे को देख जो प्रभु ने तुझे दिए है, उस बच्चे का आनंद ले और प्रभु को धन्यवाद दे। प्रभु ने तुझे अच्छा शरीर दिया है, उसको देख, प्रभु को धन्यवाद दे। लीव ना, छोड़ना, वो बाजू वाले के पास क्या है, छोड़ना। Enjoy what God has given you. जो प्रभु ने आपको दिया है उसका आनंद लो ना। Once you do that, na, if you enjoy what God has given you, अगर आप आनंद लेना सीखोगे जो प्रभु ने आपको दिया है, I promise you, मैं आपको वादा करता हूँ, your bones will never rot
they will always be strong and healthy. आपकी हड्डियां ना कभी नाश नहीं होगी, लेकिन वो हमेशा मजबूत रहेगी। Your body will be strong. आपका शरीर मजबूत So रहेगा, all the days of your life you can serve the Lord. ताकि आपके पूरे जीवन भर आप प्रभु की सेवा कर पाओ। You know, at 128 years of age, God told Moses, "Come home. Let's come home." जब मूसा 120 साल का था ना, प्रभु ने उसे कहा अभी बहुत हो गया, अभी घर आओ। Chalo, आओ. You know, I don't know about y'all. I used to love to play. मुझे आपके बारे में नहीं पता है, मुझे खेलना बहुत पसंद था। My mom will know Dad is going to come. तो माँ जानती थी जब पिताजी आने वाले, So she will shout from the house. तो वो घर से चिल्लाएगी, And right in the ground, और ग्राउंड में she will call, और चिल्ला के मुझे बुलाएगी, "Come. जल्दी आओ, He's coming." वो आ रहा है। So I'll say 2 more minutes, 2 more मैं minutes. कहूँगा 2 मिनट 2 मिनट। Same way. वैसे ही God is telling Moses, प्रभु मूसा से कह रहे बस हो गया, चलो अभी. हैं, ऊपर आ जाओ अभी। You know what Moses told? पता है मूसा ने क्या कहा? God, प्रभु I'm still young. मैं अभी भी जवान हूँ। You know when he said पता है कब कह रहा है? 120 years. 120 साल का था तब। हम लोग 120. He will say I'm coming home. हम लोग 120 करेंगे, हम कहेंगे हाँ बिल्कुल आ रहे हैं। 120 ने मैं आप भी आ I'm coming now only. अभी आ रहा हूँ, तैयार हो आने के लिए। Some of us in this COVID only we are telling God, take me, take me, take me. फिर भी लोग कोविड पे कह रहे प्रभु मुझे ले लो। God is saying, I'm not taking you, be there. प्रभु कह रहे मैं नहीं ले रहा, उधर ही रहो थोड़ा। So Moses said, I'm not coming, Lord. मूसा ने कहा मैं नहीं आ रहा हूँ। I have strength like young people. अभी भी मेरे पास जवान लोगों की समान ताकत है। That means I can run at 120. इसका मतलब है मैं भाग सकता हूँ अभी And भी। then he's saying, फिर क्या? my eyesight is not weak. मेरी आंखें कमजोर भी नहीं है। Moses बोल रहा है बाबा, who are you? आप कौन हो? Child of God. प्रभु के बच्चे। God is your father. परमेश्वर आपके Who are पिता है। you? आप कौन हो? Temple of God. परमेश्वर का मंदिर हो। Filled with the presence of God. परमेश्वर की उपस्थिति से भरे हो। I pray you will have strong bones, strong body in the name of मैं Jesus. प्रार्थना करता हूँ आपकी हड्डियां मजबूत होगी, आपका शरीर मजबूत होगा यीशु के नाम। Hallelujah. But finally, Moses said, okay, I'm coming home. अंत में मूसा ने कहा आ ही जाता हूँ। We all have to go home. हम सबको जाना है घर, But let's go strong to God. लेकिन आइए मजबूती से जाए, Let's go healthily to God. अच्छे स्वास्थ्य में जाए। Yeah, I'm not condemning anybody, okay? मैं किसी पे दोष नहीं लगा रहा Because I have seen in my home. कि मैंने मेरे घर में ही I बीमारी love देखी sick है। people. I love sick people. मैं बीमार लोगों से प्यार करता हूँ, But I hate sickness. लेकिन मैं बीमारी से नफरत करता हूँ। I have seen with my eyes what it can do. मैंने मेरी आंखों से देखा है कि ये क्या करता It है, can destroy whole family. पूरे परिवार का नाश करता है। But I thank Jesus. यीशु को मैं धन्यवाद By देता his हूँ, wounds, उनके घाव से you are healed. आपको चंगाई मिलती है। By his wounds, उनके घाव से you can receive healing. आप चंगाई पा सकते हो। Amen. Last one. आखिर Number 5. 5वां, How to receive healing and health in your body and your bones. कैसे अपने शरीर और हमारी हड्डियों में अच्छे स्वास्थ्य को पा सकते हैं हम? You should have a healed heart. आपका हृदय ना चंगा होना चाहिए। Yes, life is full of challenges. जीवन है ना पूरा संघर्षों से भरा है, Full of challenges. पूरा संघर्ष से भरा है। Job chapter 14 verse 1 says, अय्यूब 14 और 1 कहता है, whoever is born of a mother, जो भी एक स्त्री से जन्म लेता है few are the days, उसके दिन तो कम होते हैं, but many are his troubles. लेकिन उसकी संघर्ष बहुत होती Psalm 90 verse 10 says, है। वचन संहिता 90 और वचन 10 है, even the best years of your life will be filled with pain and trouble. हमारे जीवन के एकदम उत्तम साल भी है ना, वो समस्या से भरे होते हैं। What do we understand? इससे हम क्या सीखते हैं? You may be a very good person, आप बहुत अच्छी व्यक्ति हो सकते godly man, हैं, दैवी व्यक्ति, walking with God, प्रभु के साथ चल रहे हो, but still there will be trouble around you. लेकिन फिर भी समस्या है हमारे जीवन में। When you go through trouble, जब आप समस्या से गुजरते हो, one of the thing is it breaks your heart. एक चीज जो होती है ना, आपका हृदय टूट जाता है, People betray you. लोग आपको धोखा देते हैं। Maybe somebody you loved, they have died. हो सकता है जो एक कोई व्यक्ति जिसे आप प्यार करते हो वो मर चुके हैं, Maybe a tragedy has happened. कोई दुर्घटना हुई आपके साथ। You know, different reason why people's hearts are broken. अलग अलग कारण होते हैं क्यों हमारा हृदय टूटता है। And once the heart is broken, एक बार जब हृदय टूटता है yeah, it affects your body and your bones. तो उसका प्रभाव आपके शरीर और आपकी हड्डियों पे पड़ता है। Yes, you know, a few years ago, कुछ साल पहले I went through some trouble तो मैं कुछ समस्या से गुजरा था and I cannot sleep in the night. और मैं रात में सो नहीं पाता था, I just can't. सो नहीं पाता। So I went to the doctor तो मैं डॉक्टर के पास गया, because my friends and Pastor Tejal took me to the doctor. क्योंकि हम सब डॉक्टर के पास लेके गए।
Actually, I'm a man. Na? You put me anywhere, I can sleep. मैं पास्टर कह रहे हैं वो ऐसे व्यक्ति है कहीं भी उनको डाल दो वो सो सकते हैं। Pastor Tejal cannot sleep. मैं नहीं सो सकती ऐसे। But for me, लेकिन उनके लिए you put me in the bus also, I'll sleep off. उनको बस में भी डाल दो तो सो जाएंगे। But when I don't sleep, then really there is a problem. अगर मैं नहीं सोता तो सच में समस्या है। So they took me to the doctor. तो हम उनको डॉक्टर के पास लेके गए। So you know the doctor asked me. डॉक्टर ने पूछा, He checked my heart. तो हृदय को चेक किया। वो क्या करते हैं? ECG। हाँ, ECG. They did ECG. Okay. पता नहीं ECG क्या होता है, पता नहीं क्या जो भी है. And they are trying to find out whether there is a problem in my heart. Okay. वो कोई हृदय में समस्या है वो देखने की कोशिश कर। So in 10 minutes they did it. 10 मिनट लगे। And they assured me. They said no heart problem. You're okay. Absolutely no problem. तो उन्होंने कहा कि हार्ट कोई प्रॉब्लम में नहीं है लेकिन या Next question. दूसरा सवाल The doctor asked me. डॉक्टर ने पूछा, You know what he's asking? पता है क्या पूछा? Are you having trouble in your life? क्या आपके जीवन में समस्या कुछ है? Doctor is asking me. डॉक्टर मुझे पूछ रहे हैं। Doctor also knows when you have trouble, it affects your heart and your bones. डॉक्टर भी जानते हैं कि जब समस्या होती है तो आपके हृदय पे प्रभाव आता है, आपकी हड्डियों पे भी प्रभाव आता है। He is asking me. वो मुझे पूछ रहे हैं। Next question. दूसरा सवाल, कितना महीना रहेगा? कितना महीना ये समस्या रहेगी? उसके हिसाब से मैं दवाई देता हूँ. So I said maybe 1 month. मैंने कहा शायद 1 महीना रहेगा। So he gave me medicine. उन्होंने दवाई दी। What is medicine? क्या है दवाई? Small tablet. छोटी सी दवाई। What medicine is it? क्या कौन सी दवाई है? Very simple. बहुत आसान। You eat it, you sleep it. अब खा लो और सो जाओ। So when you want to sleep, तो अगर आप सोना चाहते हो just put that in your mouth. खा लो गोली। Because your mind is running like like a horse. क्योंकि आपका मन एक घोड़े के समान दौड़ रहा है। Yeah, धड़ 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 धड़. Praise God. प्रभु की स्तुति हो। Please listen to the word of God because प्रभु I के want to वचन को close now. सुनो। Proverbs 17 verse 22. नीति वचन 17:22। A happy heart is a good medicine, एक खुश हृदय जो होता है ना अच्छी दवाई होता है, but लेकिन a broken heart एक टूटा हृदय dries up the bones. वो हड्डियों को सुखा देता है। Let me say it again. फिर से कहता हूँ, But a broken heart, एक टूटा हृदय it dries up the bone. हड्डियों को सुखा देता है। Okay, there are 206 bones. 206 हड्डियां हैं। Yeah. And some of the bones कुछ हड्डियां जो है help to manufacture blood cells. तो उसके अंदर खून का निर्माण होता है। Yes. And there are 3 types of blood cells which are created. और 3 प्रकार के खून के सेल्स होते हैं Yes. जिनका निर्माण But होता it है, is in the bones, okay? लेकिन वो सब हड्डियों में निर्माण Because होता here है। the Bible is saying, यहाँ पे बाइबल में लिखा a है broken heart dries up the bone. जो टूटा हृदय हड्डियों को सुखाता है। क्या सुखा रहा है? वो बोन को सुखा रहा है या अंदर जो मसाला है उसको सुखा रहा है? So that blood cell, it helps to do 3 things. जो खून है ना वो 3 बातें करने के लिए मदद करता है। Number 1, पहला, it carries your oxygen. तो वो जो ऑक्सीजन है ना वो उसको लेकर चलता है। They also help you in your immunity. ये जो लहू है ना ये हमारी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए भी मदद करता है। Yeah, so when virus comes, जब वायरस आता है if your immunity is high and strong, it can protect you. तो आपकी ये जो लड़ने की क्षमता है वो अगर ज्यादा है तो वो आपकी मदद करती है। When your heart is broken, जब आपका हृदय टूटता है it dries up the bone. तो हड्डियां सूख जाती है। That means इसका मतलब है it can also affect your oxygen. तो आपके ऑक्सीजन पे इसका प्रभाव होगा, It can affect your immunity system. तो ये आपकी इम्यूनिटी पे प्रभाव होगा And it can affect everything in your bones. और आपकी हड्डियों में जो भी है उस पर प्रभाव होगा। So you may say, what should I do? तो आप कहेंगे पास्टर मैं क्या करूं? So you may ask me, Pastor, what did you do when the problem was happening? तो आप कहेंगे पास्टर आपने क्या किया जब आपके जीवन में समस्या थी? Did you eat that छोटा medicine? तो आपने क्या वो छोटी छोटी गोलियां खाई? लिया, मैंने लिया। लिया, लेना पड़ा। लेना पड़ा क्योंकि नींद नहीं आता था। It's like a truck is going on in my head. ऐसा लगता है बड़ी सी ट्रक मेरे सर में जा रही। Then one person told me, फिर एक व्यक्ति ने मुझे कहा who loved me, जो मुझसे प्यार करता था, Vijay, let's go to Jesus. आओ हम यीशु के पास जाते हैं। Matthew 11:28. मत्ती 11:28। All of us, we have to go to Jesus. हम सब ने यीशु के पास जाना है। Broken heart can only be healed by one doctor. His name is Jesus. तो टूटा हृदय है ना उसे चंगाई सिर्फ एक डॉक्टर दे सकता है और उसका नाम है यीशु। Yes. Now this is not a physical heart, okay? ये शारीरिक हृदय की बात नहीं कर रहा हूँ, No. This is a spiritual heart. ये आत्मिक हृदय की बात चल रही है। Psalm 147 verse 3. वचन संहिता 147 वचन 3। He heals the brokenhearted.
परमेश्वर टूटे हुए हृदय को चंगा करते हैं and he binds their wounds. और उनके जख्म को भरते हैं। So I went to Jesus. तो मैं यीशु के पास गया। So he asked me, what happened? आप कहेंगे क्या हुआ? Yeah, I had a lot of pain मेरे अंदर बहुत दर्द था because there was betrayal, क्योंकि धोखा था, there was a lot of things, बहुत सारी चीजें थी, lot of pain was there. बहुत दर्द था। One thing sustained me that time, एक चीज ने मुझे संभाल के रखा उस समय में, only one thing. एक ही बात। Jesus only told me, यीशु ने मुझे कहा, what have I said? मैंने क्या कहा है? If somebody asks you for your coat, अगर कोई तुम्हारा कोट मांगता है give your coat तो कोट तो दे ही दो and give your shirt also. और शर्ट भी दे दो। I know only that. मैं सिर्फ इतना जानता In हूँ। that whole journey, I only know that. मेरी पूरी यात्रा में मैं इतना ही जानता हूँ। And then the Lord told me, फिर प्रभु ने कहा, what I have given you, मैंने जो तुम्हें दिया है ना, nobody can give. कोई उसे नहीं ले सकता। I want to tell all of you, मैं आप सबको कहना चाहता हूँ, don't fight. लड़ो मत। जो स्वर्ग से पार्सल आया है ना तेरे नाम पर, वो कोई भी उठाएगा नहीं. I only survived on this. मैं सिर्फ इसके ऊपर जिंदा रहा। And the Lord told me, और प्रभु ने मुझे कहा, you are very hurt, you are very broken. तुम्हें बहुत चोट पहुंची है, तुम्हारा हृदय बहुत टूटा है। Normal, it is normal. ये आम बात है। For example, if you are married and if your husband leaves you and goes उदाहरण के तौर पे अगर आपकी शादी हो चुकी है, आपका पति आपको छोड़ के जाता है for another woman, कोई दूसरी स्त्री के लिए, your heart will be broken. तो आपका हृदय टूटेगा। Normal, it is very normal. ये नॉर्मल बात है। Don't say, नहीं मला काय झालं नाही, मला काय झालं नाही, मी बरी, अरे काय म्हणे. That's fake, that is fake. वो ढोंग है। When you go through trouble, your heart will be broken. जब आप समस्या से गुजरोगे तो आपका हृदय जरूर टूटेगा। So you have to go to your doctor. तो आपने आपके डॉक्टर के पास जाना है। So I told the Lord, तो मैंने प्रभु से कहा, I want you to heal me मैं चाहता हूँ आप मुझे चंगाई दो, because I have a lot of pain क्योंकि मेरे अंदर बहुत दर्द है and I have a lot of, I don't like what is happening. और मुझे अच्छा नहीं लग रहा है जो हो रहा है, I don't like. अच्छा नहीं लग रहा है। I want you to heal me. मैं चाहता हूँ आप मुझे चंगाई दो, Otherwise, I may become mad. वरना मैं पागल हो जाऊंगा। But the Lord is so kind. प्रभु बहुत भले हैं। Psalm 34 verse 18. भजन संहिता 34 18 वचन। I can still remember there were times Jesus would literally come into the bedroom मुझे अभी भी याद है ऐसे समय थे यीशु मेरे बेडरूम में आते थे and Jesus would comfort me और यीशु मुझे सांत्वना देते, like a mother is comforting a child. जैसे माँ अपने बच्चे को सांत्वना देती। Yeah, Pastor Tejal is sleeping, but she has been an amazing woman of God, an amazing wife, and in fact, I was fearful about her that she should not be broken in this whole thing. But I thank God, and the Lord used to come. प्रभु आते थे बेडरूम में और गले लगाते थे, क्योंकि जो दर्द होता है ना वो किसी को समझता है। हम हमारे जीवनों में ऐसे समय आते हैं जहाँ कोई समझता नहीं, और मैंने आपको लास्ट संडे यही बोला था कि परमेश्वर हमारा पिता है जो हमें एक बच्चे को जो पिता उठाता है अपने गोद में और चलाता है वैसा, और मुझे पता है वो जर्नी मैंने कैसा किया। तो प्रभु ने मुझे बोला मैं तुझे संभाल लूंगा क्योंकि तू मेरे पास आया। और अगर मैं नहीं गया होता ना प्रभु के पास, मैं तुम्हें कहता हूँ आज मैं आपकी सेवा नहीं कर सकता, आज नहीं कर सकता, क्योंकि मेरा जो हृदय है ना वो कड़वाहट से भरा गया था और मैं आप लोगों की सेवा नहीं कर सकता। आपके सामने प्रभु के लिए बहुत बड़ी योजना है, बहुत बड़ी, आपके सामने बहुत बड़ी योजना, लेकिन ये जो दुख और शायद आपके अंदर भी टूटापन है, और प्रभु कह रहा है उसके कारण डेफिनेटली बोन्स तो है, लेकिन बोन्स से भी ज्यादा, आपके शरीर से भी ज्यादा मैं आपको कुछ कहना चाहता हूँ। प्रभु आपके ऊपर बहुत भरोसा कर रहा है। प्रभु के पास एक बहुत बड़ा योजना है तुम्हारे जीवन के लिए, और प्रभु कहता है मैं तुझ पर भरोसा करता हूं कि तू वो पूरा करे। और मुझे पता है 1.5, 2, 3 महीना प्रभु खुद आते थे और मुझे सुलाते थे, और मैं एक बच्चे की जैसे सोता था। तो लोग पूछते हैं क्या हुआ फिर, मैंने बोला मुझे पता नहीं। प्रभु ने हर दिन मेरे बेडरूम में आते थे और मेरा ड्रेसिंग कराते थे, वही है।
हर दिन। और मैं तुम्हें यही कहना चाहता हूं कि टूटे हुए लोग आप प्रभु के पास आओ, वो आपको ड्रेस करेगा, वो आपको चंगाई देगा। जब चंगाई मिलती है ना, मैं आपको यही बोलना चाहता हूं, व्हेन यू आर हील्ड, जब आपको चंगाई मिलती है, दिस इज द एविडेंस तो ये सबूत है that the people who have given you trouble, जो लोगों ने आपको तकलीफ दी है, you will love them. आप उनको प्रेम कर पाओगे। How do you know you love them? आप कैसे जानते हो कि आप उनको प्रेम करते हो? You are able to pray for them. आप उनके लिए प्रार्थना कर पाते हो, That is the proof. वो सबूत है। What is the proof? क्या सबूत है? You are able to pray. कि आप प्रार्थना कर पाते हो उनके। In prayer, प्रार्थना में I can serve people who hate me. मैं उन लोगों की सेवा कर सकता हूँ जो मुझे नफरत करते हैं। Yes, but I can only serve them if I am healed in my heart. लेकिन मैं उनकी सेवा तब कर सकता हूँ जब मेरा हृदय चंगा है। So I pray for all the people who have troubled me. तो मैं उन सब लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ जो जिन्होंने मुझे तकलीफ दी है। I am their friend. मैं उनका दोस्त हूँ। I don't know about them, उनके बारे में मैं नहीं जानता, but I am their friend मैं तो उनका दोस्त हूँ, because the Lord has healed me. क्योंकि प्रभु ने मुझे चंगाई दी है। Same Jesus वही यीशु can heal you. आपको भी चंगाई दे सकता है। And in fact, the Bible says he was anointed to heal the broken heart. बाइबल में लिखा है यीशु का अभिषेक इसलिए किया था ताकि वो टूटे हुए हृदय को जोड़े। In fact, I see the Lord taking people in their arms, मैं देख रहा हूँ प्रभु आपको अपनी बाहों में ले रहे हैं and love is flowing और प्रेम बह रहा है in your. आपके हृदय में। Just close your eyes, lift your hands. अपनी आंखें बंद करो, अपना हाथ उठाओ। All those who feel वो सब लोग जिनको ऐसे लग रहा है their hearts are broken, उनका हृदय टूटा है, I feel especially the Lord is ministering to them. मुझे ऐसे लग रहा है कि प्रभु उन लोगों की सेवकाई कर रहे हैं। If there are tears rolling out of your eyes, अगर आपकी आंखों से आंसू आ रहे हैं don't close. तो बंद मत करो उसे। Let the Lord minister to you. उन्हें तो प्रभु आपकी सेवकाई करे। And if you feel there are tears and you want to stand wherever you are, you can do that because the Lord is here. और अगर आपको लग रहा है कि आंसू है और आप खड़े रहना चाहते हो, आप कर सकते हो। Or you want to kneel. आप घुटनों पे जाना चाहते हो। Next 2 minutes, the Lord will do amazing things. आने वाले 2 मिनट प्रभु अद्भुत चीजें करेंगे, Because I see the Lord क्योंकि मैं देख रहा हूँ प्रभु को। where you are. आप जहाँ हो वहाँ पर The Lord is taking away your pain, प्रभु आपके दर्द को निकाल रहे हैं, your grief. आपका जो शोक है। See the Lord taking people in His arms. देख रहा हूँ प्रभु लोगों को अपनी बाहों में ले। I see the Lord coming and putting gifts in the hands of people. मैं देख रहा हूँ प्रभु आ रहे हैं और लोगों के हाथों में भेंट दे रहे हैं। And the Lord says, go, use it. प्रभु कह रहे हैं जाओ, इस्तेमाल करो, Magnify my name. मेरे नाम की बड़ाई करो। Lord, I pray right now प्रभु इस वक्त मैं प्रार्थना करती हूँ for all the people who are sick सारे लोग जो बीमार हैं in their body. अपने शरीर में, Every part of their body उनके शरीर का हर एक भाग where they are sick. जहाँ पे वो बीमार है, I take authority over it उसके ऊपर मैं अधिकार लेता हूँ in the name of Jesus. यीशु के नाम में। Lord, प्रभु by those wounds वो घाव के द्वारा we were healed. हमें चंगाई मिली है। That blood, वो लहू, that life. वो जीवन। Now I speak. इस वक्त मैं बोलता हूँ Every sickness in the body, हर एक बीमारी से, every sickness which has come down from generation, जो पीढ़ियों से बीमारियां आई है, I rebuke you. मैं तुम्हें डांटता हूँ, I command you, go. मैं तुम्हें आज्ञा देता हूँ जाओ, I command you, leave the body. मैं आज्ञा देता हूँ शरीर को छोड़ के You जाओ। have no right to be in that body. तुम्हारे पास कोई हक नहीं वहाँ रहने I का। command you, go. मैं तुम्हें कहता हूँ जाओ, Cancer, go. कैंसर निकल जाओ, TB, go. टीबी निकल जाओ, Diabetes, go. डायबिटीज निकल जाओ, In the name of Jesus. यीशु के नाम में, Arthritis, go. आर्थराइटिस निकल जाओ, Every
kind of sicknesses in the bones, हर एक प्रकार की बीमारियां हड्डियों में, I rebuke you now. मैं तुम्हें डांटता हूँ इस वक्त, I command you, go. मैं कहता हूँ जाओ, Leave their body now. उनके शरीर को छोड़ो इस वक्त, Every skin infection, हर एक स्किन इन्फेक्शन, every skin problem, हर एक चमड़ी में समस्या, I rebuke you right मैं now. तुम्हें डांटता हूँ इस In the वक्त, name of Jesus, यीशु के नाम I में break your authority. तुम्हारा अधिकार तोड़ता हूँ, Go. जाओ। I see the Lord laying his hand over you. मैं देख रहा हूँ प्रभु अपने हाथ आपके ऊपर रख रहे हैं, Skin is getting clear. जो चमड़ी ठीक हो रही है, Ears are getting healed. कान भी ठीक हो रहे हैं, Eyes are being healed. आँख ठीक हो रही है। Lord, I pray. प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ, Bones which are out of place, जो हड्डियां अपनी जगह से बाहर हो I गई है, speak to them. मैं उनसे बात कर रहा हूँ, Go back to your place. अपनी जगह वापस जाओ। Bones which are melted, जो हड्डियां गल रही है, I pray, मैं प्रार्थना करता be हूँ, healed in the name of Jesus. चंगाई पाओ इस वक्त। Bones which are paining, जो हड्डियों में दर्द है, I speak to you right now. मैं इस वक्त तुमसे बात कर रहा हूँ, Leave, बाहर निकलो, leave, बाहर pain, निकलो, pain, go, दर्द बाहर निकलो, go. बाहर निकलो। Every bone which has been twisted, हर एक हड्डी जो हिल गई है, I speak to you मैं तुमसे कहता हूँ, in the name of Jesus. यीशु के नाम में Become straight, सीधा हो जाओ, become straight सीधा हो in जाओ, the name of Jesus. यीशु के नाम में। Every bone which has been fractured, हर एक जो हड्डी टूट गई है, I speak to you now मैं तुमसे बात कर in रहा the हूँ, name of Jesus. यीशु के नाम Be में healed. चंगाई पाओ। I pray. प्रार्थना करता हूँ, The bones where there are joints, जहाँ पे जोड़े हैं, yes, and in those joints, वो जोड़ों में the pain which is जो there, दर्द है, I pray, especially the knees. मैं खास करके घुटनों के लिए प्रार्थना I करता हूँ, pray in the name of Jesus यीशु के नाम में प्रार्थना that करता there would come healing over there. हूँ, वहाँ पर चंगाई आएगी, In the name of Jesus, यीशु के नाम में, shoulders to be healed कंधों में चंगाई आए right now. इस वक्त, Yes, in the name of Jesus, यीशु के नाम में, hips to be healed, जो कमर में चंगाई आए, legs to be healed. पैरों में, In the name of Jesus, यीशु के नाम में। I thank you. धन्यवाद Lord, we thank you. प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं, Such a good God. आप इतने भले परमेश्वर, Give you glory. हम आपको महिमा देते Give you glory. हैं, आपको महिमा। Thank you for all that you have done. धन्यवाद वो सब जो आज आपने किया है। Lord, I pray प्रभु मैं प्रार्थना करता we हूँ, will have good health हमारे पास अच्छा स्वस्थ and we रहे will have strong bones. और मजबूत हड्डियां रहेगी। We will not live in sin. हम पाप में नहीं We जिएंगे, will not live in envy. हम ईर्ष्या में नहीं जिएंगे, We will always take the words of grace. हम अनुग्रह के शब्द लेंगे, We will receive healing to our broken hearts. हमारे हृदय में चंगाई पाएंगे And we will walk with you. और आपके साथ चलेंगे। In Jesus' name I pray. यीशु के नाम में मैं प्रार्थना Jesus, you are my healer. Oh Jesus, touch me and I